Hello students, this is CBC class 9th number system exercise 1.3 continuation video. If you not watched the previous, if you must have watched the previous videos. In that video I have discussed about exercise 1.3 questions 1, 2, 3, 4. Today I am going to discuss 4th question, 5th and 6th, and we'll try to finish this exercise in this video. So please watch this video till the end. In the 4th question, what is the 4th question says express 0.999 in the form of P by Q, and it says more. I have not written the full question on the board. With your teacher, are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. What the question says, first of all you have to convert this in the form of P by Q, then you will see the answer. After seeing the answer, are you surprised? Discuss this answer with your teacher and student classmates. We'll discuss here. So first of all, we'll convert this in the P by Q form. So as I said before, x equal to, we'll take this number as x, 0.9 bar, I can write like this. Okay, 999 means 9 bar. Now, after decimal, how many digit is there? 1 digit. So we'll multiply by 10x, 10 by both sides. This will become 9.9 bar. I hope you understand. Then we'll subtract this number from this number. So put minus sign, subtract it. You will get 9x is equal to 9. Okay? Because this 0.9 bar you can cancel. Now x equal to 1. Now my question is, are you surprised by the answer? See this question, this x value. X value was 0.99999 and so on. And we got x value as 1. Compare these two values and see whether these two numbers are same. My question is whether these two numbers are same. This is 0.999, you can go infinite times. So this is 1. Whether these two numbers are equal? No. Both numbers are not equal. This is approximately 1 but not 1. This is clearly full 1. So why, if I convert 1 by 3 and find out, we'll get what? 0.333 and so on, 3 bar. Okay. Both values are same. If you reconvert this number in this form, you'll get same. If you want to convert this, you take x equal to 0.3 bar, multiply by 10x, you will get what? 3.3 bar. So 10x equal to 3.3 bar. So you will get what? After subtracting x equal to 0.3 bar minus x, you will get 9x is equal to 3.3 bar minus this guy, you will get 3, x equal to 1 by 3. Now see, both values are same, but here in this case values are not same. That's why we are surprised by the answer. Now they have asked to discuss with your classmate and teacher. I will say this is near to 1. This is closely 1, and very small values, minute values are neglected in mathematics. Okay, this is the answer. Please pause this video and note it down. We'll solve question 5. Hello students. Now see question of 5. What can be maximum number of digits be in the repeating block? Repeating block means a group of numbers will be repeating in the decimal expansion of 1 upon 17. मतलब 1 by 17 का अगर हम decimal expansion करेंगे तो कितने numbers का group बार बार repeat होगा? इसको हमें करना है perform the division and check your answer. लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे जब तक रिपीट नहीं होता है. आप जानते हैं रिपीट कब होता है? जब आपका डिविडेंड वापस मिल जाए रिमाइंडर में. ठीक, देखते हैं. तो डिवीजन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड. 1 by 17 आप लिख देते हैं, आंसर लिखूंगा बाद में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड 1 by 17. नंबर इज स्मॉलर देन 17, सो विल पुट point decimal for this. Now you know this, if you put point it become 10. Now still number is smaller, so we'll add one more 0 and take 1 0 down. Okay, then we'll read the table of 17. 17 5s are, you all know that 17 5s are 85. Remainder will come 15. Remainder will come 15. Now we'll put one more 0. You all know that 17 9s are 153, 17 8s are 136, so it will go 8 times. Put 136, remainder will come 4. Then we'll put one more 0, number is
sorry, remainder will come not 4, sorry, 4 here, and 4 minus 3 1, 14 will come remainder. We'll put one more 0, so still you can see 8 times will go. 15 8 is 136 will go one more time 8 times, so this will become, now remainder will become 4. Okay, now we'll add 1 0, it will become 14. We all know that 17 2s are 34, so it will go 2 times. 17 2s are 34, remainder will come 6. This is visible. Okay, we'll add one more 0, this will become 60. How many times it will go? 17 3s are 51, so it will go 3 times. 51, remainder will come 9. I'll take this part here, continuation part here. Okay, now remainder is 9, we have to divide by 17, so I'm doing the remaining part. I'm writing 9 over here, dividing by sign. So what I do, I'll add one more 0. जैसे आप जानते हैं कि 0 लगा देते हैं हम लोग, कितनी बार जाएगा? 17 5s are 85, so it will go 5 times 85, रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 5. ठीक है, एक 0 और लगाते हैं, ये हो जाएगा 50. आप जानते हैं कितनी बार जाएगा? 17 3s are 51, so it will go 2 times, so we'll write 2. How much? 34, 17 2s are 34, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 and 1 16. ओके, ऐड 0 कर देते हैं, तो 17 9s are 153, so 9 by जाएगा, 9 टाइम जाएगा. यहाँ पे आ गया आपका 153. रिमाइंडर क्या आएगा? 150 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, माइनस करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा. एक 0 लगा देते हैं, ये हो गया 70. हाउ मेनी टाइम इट विल गो? 70 है ना, तो 4 टाइम्स इट विल गो. 17 4s are 68. ओके, सो इट विल गो 4 टाइम 68. रिमाइंडर क्या आएगा आपका? रिमाइंडर आएगा 2, इट्स विल कम 20. 1 टाइम 17, रिमाइंडर क्या आएगा? 3. ओके, 30 हो गया. फिर एक बार 1 टाइम ही जाएगा, 17 2s are 34 हो जाता है, सो 1 टाइम इट विल गो. आई विल राइट 1 हियर. तो 17, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 10 minus 7 3, here 2 minus 1 1, 13. So we'll put 0 here over here. This will become 130. How many times it will go? It will go 17 times. 7 times, sorry. 17 7s are 119. 17 8s are 136. So it will go 7 times. We'll write 7 over here. 119. 17 7s are 119. Remainder कितना आएगा आपका? 10 minus 9 1, 2 minus 1 1, 11. I'll write here further. Now here it is 11 and we have here 17. Okay, this is continuation part. How many time it will go? How many time? We have to add 0 first of all. This will become 110. How many times go? कितनी बार जाएगा? 76 are 102. Okay, 76 are 102. So remainder कितना आएगा? 8. 8. Okay, now put 0 over here. अभी तक हमको रिमाइंडर 1 नहीं मिला. जब रिमाइंडर 1 मिलेगा ये चीज पूरा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, 80 हो गया. कितनी बार जाएगा ये? 4 टाइम. 74 68, so 4 टाइम विल गो. आई राइट 4 ओवर हियर. आई हैव नॉट राइट 6, आई थिंक 6 4. ओके, रिमाइंडर विल कम 10 minus 8 2, here 7 minus 6 12. Put 0 12. How many times will go? 17 7s are 190, so we'll write 7 over here. 7 टाइम विल गो 190. देखिए रिमाइंडर आ गया 1. ठीक है, अगर आप देखेंगे फिर अगर आप लोग यहाँ 0 लगाते हैं, ठीक है, तो 10 नंबर छोटा है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इसके आगे खाली अभी समझने के लिए इधर लिख दे रहा हूँ, इसके आगे मुझे 0 लगाना पड़ेगा. फिर ये हो जाएगा 100. फिर देखिए 8 सीन से स्टार्ट हो रहा. 17 5 85, रिमाइंडर आएगा. फिर आपका 15, एक 0 लगाएंगे, फिर 8 टाइम जाएगा, ये आएगा, पूरा चीज वापस होगा. फिर लास्ट में इधर बनाएगा, हम लोग को फिर से स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. यही पूछा है सवाल में कि कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने नंबर का समूह एक साथ रिपीट होगा. तो रिमाइंडर जब सेम आ जाए, जो डिविडेंड था स्टार्टिंग में वही डिविडेंड वापस आ जाए, तो उतने ग्रुप का नंबर जो है रिपीट होने चलेगा. आप डिवाइड करके देखिए आगे, एक दो बार और अगले स्टेप जाइए, आपको यही नंबर्स मिलेंगे. तो कितने डिजिट्स का ब्लॉक है काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So there are 16 numbers, sorry 16 digits which are repeating. अब ये डिजिट्स पे मैंने बार लगा दिया. बार मतलब यही चीज बार बार आएगी. अब इनफिनिट तक करते जाइए, यही मिलेगा. तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया. समझ में क्या पूछा है? कितने नंबर डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होगा? तो 16 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होगा. और बोला है कि परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन and to check your answer. So we have performed the long division, we got this answer. So what is answer for 1 by 17? I said I will write afterwards. Here it is, 1 upon 17 is equal to
0.05882 I'll write here 352 okay 9411 it's a phone number like 7647 this is one thing okay and put bar sign on it. Please pause this video and note it down. So students, question number 6 I'll read for you and orally I'll explain it. Look at several examples of rational numbers in the form p by q when p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representations. Can you guess that property q must satisfy? मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स को देखिए जो कि p by q के फॉर्म में हो और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है? तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो. आपको मैंने बताया था जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उनके डिनोमिनेटर जो होंगे वो या तो 2 उनके प्राइम फैक्टर जो होंगे या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 की पावर कुछ होगा या 5 की पावर कुछ होगा. हमको क्या लिखना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर जो q होता है वो या तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं. बस इतना सा लिखना है क्वेश्चन 6 में. तो 7th क्वेश्चन देखते हैं इसलिए आप लोग होमवर्क में करिएगा. 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. मतलब ऐसे 3 नंबर बताना जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ना हो और रिकरिंग ना हो. सो देयर आर सच इनफिनिट नंबर्स आर देयर यू कैन राइट एनी 3 नंबर्स. ध्यान में रखना है कि टर्मिनेट ना करें. ना टर्मिनेट करें मतलब लास्ट में डॉट डॉट डॉट. ओके. दूसरा बोल रहा है कि नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी ना करें. जैसे हमने पिछला सवाल देखा उसमें 16 डिजिट का ब्लॉक रिपीट करना स्टार्ट कर रहा था वैसा ना हो. मतलब इस तरह का ना हो 0.3333 ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. अब बोला कि नॉन रिपीटिंग मतलब 3 रिपीट ना हो तो आप लिखिए 303. एग्जाम लिख देते हम लोग 0.03 003 003 4 times 03 and so on. So it goes on repeating. क्या रिपीट हो रहा है कोई नंबर? नहीं रिपीट हो रहा है. सर 33 आ रहा है 33 आ रहा है लेकिन इसमें जीरो का नंबर बढ़ते जा रहा है. कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा ना. ओके. सो ये क्या हो गया नॉन रिपीटिंग और ये सिंबल दिखाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग. एक ऐसी तरह आपको 3 नंबर लिखना है. कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए 1.01 001 001 ठीक है डॉट 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 और लिख लेते हैं 7.123 412 7825 डॉट 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 कुछ भी लिख लीजिए. नंबर तो रिपीट हो नहीं रहा. अंडरस्टूड. नंबर रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो. ऐसे 3 एग्जांपल लिख लेते हैं जो हो गए. आई होप वेरी इजी क्वेश्चन यू अंडरस्टूड. नाउ सी द 8th क्वेश्चन. फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11. इस क्वेश्चन को कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं. आप इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. कैसे करना है ये बता रहा हूं. सबसे पहला काम हम करेंगे फर्स्ट है कन्वर्ट 5/7 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और 9/11 को भी डेसिमल में निकालना मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है. इधर लिखता हूं डेसिमल फॉर्म में सेम 5/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा. उसके बाद उनके बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है. मतलब टाइप ऐसा होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर ली कि 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.37 आ रहा है. ओके या 0.37 आ रहा है. ठीक है एक बात करें. और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन मान लीजिए आता है आपको 0.635 सपोज करिए. ठीक है राइट आंसर नहीं है. हाँ. अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? देयर आर इनफिनिट नंबर्स. आपको 3 ऐसे नंबर चूज करना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो. ठीक. तो हम क्या करेंगे 37 के बाद से ले लीजिए 0.38 या 25789 कुछ भी लिखिए डॉलर लगा दीजिए. ना रिपीटिंग होना चाहिए ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए. उसके बाद 0.39 ले लीजिए. एक नंबर एक डिजिट चेंज कर दो तो भी काम हो जाएगा. कुछ भी लिख दीजिए क्योंकि इनफिनिट नंबर्स होते हैं. आप लिख लीजिए 0.39 1 2 3 4 सब डिफरेंट नंबर होने चाहिए. बस इसी तरह आपको इनफिनिट नंबर्स लिखा जाता है. आई होप यू आर अंडरस्टूड. सबसे फिर से बता रहा हूँ पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट करिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट करिए. इसके बाद उनके पॉइंट के बीच में आप देख रहे हैं कि जो मेजर नंबर्स हैं उनके बीच में इनफिनिट नंबर होते हैं. अपने मन से कोई भी नंबर बना के लिख सकते. तो टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
Question number 9 says classify the following numbers as rational and irrational. क्वेश्चन नंबर 9 में बता देता हूँ आपको क्लासिफाई करना है कि क्वेश्चन ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं और डिस्कस करते जाते हैं कि रैशनल है कि इरेशनल है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन यू सी इट इज √23। आप बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है। मैंने बताया था नंबर ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ इरेशनल नंबर। तो देखिए जो नंबर रूट के अंदर होते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर है। आप देखिए 23 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता है, देयरफॉर इट इज क्या, इट इज इरेशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। क्या बताया मैंने, रूट के अंदर जो नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो इरेशनल नंबर होता है बस। सेकंड क्वेश्चन √225, √225। अभी देखो 225 जो अंडर रूट है ये 15 का स्क्वायर रूट है, क्या आएगा इसका आंसर 15। और आप सब अच्छे से जानते हो कि 15 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 15 नंबर 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। थर्ड एग्जांपल इसका देखिए क्या कहता है। थर्ड एग्जांपल है 0.3796। 0.3796। अभी देखिए इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। दो तरह से ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। देयरफॉर दिस इज रैशनल नंबर। ओके, नाउ सी फोर्थ पार्ट व्हिच इज 7.478478। 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्या ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 478448। देखो 478478 रिपीट हो रहा है। ओके, 478478 रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले हैं, रिपीटिंग वाले। तो ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। समझ में आया। बोले कि सर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैं बताया आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन 1.1010010001 4 times 01। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन तो है, लेकिन क्या रिपीट हो रहा है, देखिए 10 100 1000 10,000 सो ऑन। ठीक है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस टाइप का नंबर है ये। आई होप यू हैव गॉट द आंसर, इट इज इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। So students, this is the last question for video. I hope you all understood all the questions. If you not understood, please rewind this video and watch it carefully. Thank you for watching.